कहानी है एक ऐसे खत की, एक ऐसे पैगाम की जो अमेरिका से पाकिस्तान आया और पाकिस्तानियों ने इसका क्या हशर किया। आइए देखते हैं। दादाजी, पोस्टमैन, डाकिया, आपके बेटे का खत आया, ले लो। जी बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। मिठू, इधर आओ बेटा। मिठू, आगे बाबा जी का खाता है। ये पकड़ो बेटा, पढ़ के सुनाए इसे। दादाजी ये तो अंग्रेजी में है, मेरी तो अभी क्लास छोटी है, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, आपको हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं। अभी चलते हैं उस्ताद के पास, चलते हैं, वो आपको पढ़ाना सिखाएंगे। जी दादाजी। आओ बेटा, आओ आओ। अस्सलामुअलैकुम टीचर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। ये इस बच्चे के अबू का खाता है बाहर से, यूएसए से, तो इसे ये पढ़ना सिखा दें ताकि ये मुझे पढ़ के सुनाए। इंशाल्लाह मैं ना आपके पोते को ना जल्दी खत पढ़ना सिखा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। I am I am absolutely absolutely fine. fine. I am I am absolutely absolutely fine. fine. I am I am absolutely absolutely fine. fine. चलो ये जाके याद करो। जी सर। I am absolutely fine. अस्सलाम वालेकुम। I am absolutely fine. अस्सलाम वालेकुम। I am absolutely fine. अस्सलाम वालेकुम। I am सारी याद हो गया। अच्छा अब आगे याद करो। I hope I hope you are you are fine fine as well. as well. I hope I hope you are you are fine fine as well. as well. I hope you are fine fine as well. I hope you are fine as well. as चलो याद well. करो। I hope you are fine as well. I hope you are fine as well. I hope you are fine as well. I will arrive soon. I will arrive soon. I will arrive soon. I will arrive soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. I will arrive soon. Allah Hafiz. या भैया। अब बेटा सुनाओ। सुनाओ मुझे। सर सुने। Dear Assalamu alaikum. I am absolutely fine and I hope you are fine as well. Inshallah, I will come to Pakistan after 1 month. Everyone should keep their documents ready. I will take all of you back with me to America. Take special care of yourself. These days while washing clothes, do not wear sponge slipper because there is a soapy water on the floor and there is a risk of slipping. If someone slips, a leg could get fractured. Also tell the children especially that while riding a motorcycle, they should not apply the front brake while taking a turn and they should not press the clutch. Please warn them clearly. About this, inshallah, I will come next month and take all of you with me. Follow these instructions carefully. Inshallah, I will arrive soon. Allah Hafiz. माशाल्लाह। अब शाम को आपके दादा के पास जाएंगे और आपने सुनाना। ठीक है? जी सर। चलें। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, क्या हाल है? आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने आपके पोते को खत पढ़ना सिखा दिया है। जी तशरीफ रखें आप सर, तशरीफ रखें। चलो मीठू पढ़ के सुनाओ दादाजी को। जी सर। Dear Assalamu alaikum. I am absolutely fine and I hope you are fine as well. Inshallah, I will come to Pakistan after 1 month. Everyone should keep their documents ready. I will take all of you back with me to America. Take special care of yourself. These days while washing clothes, do not wear sponge slippers because there is a soapy water on the floor and there is a risk of slipping. If someone slips, a leg could get fractured. Also tell the children, especially that while riding the motorcycle, they should not apply the front brake while taking a turn and they should not press the clutch. Please warn them clearly. About this, inshallah, I will come next month and take all of you with me. Follow these instructions carefully. Inshallah, I will arrive soon. Allah Hafiz.
वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह, वाह मिठू वाह। आयो पेंडा ले हो, बच्चा बना दे के गया। तो देखा आपने, टीचर साहब ने बच्चे को टेक्स्ट याद करा दिया, खत का मीनिंग तो बताया ही नहीं। उसमें लिखा था कि जो बच्चे का बाप है वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ अमेरिका से, आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, मैं आपको साथ ले जाऊंगा। उसमें ये भी लिखा था कि खवातीन कपड़े धोने के दौरान स्पंज की जूती ना इस्तेमाल करें वरना गिर जाएंगी। और उसमें ये भी लिखा था कि बच्चे मोटरसाइकिल चलाने के दौरान मोड़ काटते हुए फ्रंट ब्रेक ना लगाएं वरना कोई हादसा हो सकता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे मिठू, मिठू, मिठू क्या हो गया तुझे? दादा अबू मोटरसाइकिल पे था, मोड़ काटते हुए अगली ब्रेक दबा दी, फिसल के गिर गया, टांग टूट गई मेरी। हाय वाह, तेरी माँ की टांग टूट गई, कपड़े धो रही थी फिसल गई। हाय मैं क्या करूं? गुड्डू, बेटा, बड़ी क्या हुआ? बेटा मिठू की टांग टूट गई, बाइक से गिरा। मैं घर से होकर आ रहा हूँ, वहाँ इसकी माँ की टांग टूटी हुई है। यहाँ आए वहाँ यहाँ बता रहे इसकी टांग टूटी हुई है। क्या आप लोगों ने मेरा खत नहीं पढ़ा हुआ था? बेटा मिठू को याद करवाया आपका खत। क्या याद करवाया? क्या मतलब? मिठू क्या याद करवाया? Dear Assalamualaikum, I am absolutely fine and I hope ला हौला वला कुव्वता, ये इस तरह याद करवाया? बेटा ये टीचर साहब बैठे हैं। किसने याद करवाया? ये टीचर बैठे हैं। मैंने खत में ये भेजा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए बाहर जाने के लिए मेरे साथ। मैंने कहा था मैं आपको लेकर जाऊंगा वापस। आपने किसने सिखाया इसको? बेटा ये टीचर साहब बैठे हुए इन्होंने पढ़ाया। आपने पढ़ाया? हाँ जी। आपने इसको ट्रांसलेशन मतलब नहीं समझाया? हमने तो पूरी कौम को इस तरह ही पढ़ाया। पाकिस्तान में इसी तरह बताते हैं, मतलब नहीं समझाते क्या? बेटा हम कुरान भी अरबी में ही पढ़ते हैं। जी कुरान पढ़ो, सवाब लो, लेकिन कुरान का मतलब भी तो जानो। क्या क्या लिखा हुआ वो भी तो जानो। अब मैं आपको अब पढ़ के सुनाता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हादा बलागुल लिन्नास वलियुनज़िर बिही वलियअलमु अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़क्करु बिही उलुल अलबाब। ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि इसके जरिए से लोगों को डर सुनाया जाए, ताकि इसके जरिए से लोगों को डर सुनाया जाए। अगर हम कुरान को नहीं समझेंगे, कुरान को नहीं जानेंगे तो ये मिट्ठू वाला हाल हो जाएगा जैसे ये मिट्ठू का हुआ। खत को याद कर लिया लेकिन ये नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, ये काम हुआ। आप सबसे भी, पूरी कौम से मेरी ये गुजारिश है कि कुरान को अपनी जुबान में समझे, अपनी जुबान में पढ़ें। वहां अमेरिका में लोग अपनी जुबान में पढ़ के काफिर जो है वो मुसलमान हो रहे हैं, तो हम तो फिर भी मुसलमान हैं। हम अपनी जुबान में कुरान को पढ़ें और समझें, वरना ये मिट्ठू वाला हाल हो जाएगा, सबकी टांग टूट जाएगी। अब आपने बताना है कि आपके खानदान में कितने मियां मिट्ठू हैं। अल्लाह हाफिज।